हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड नाउ आई एम हियर विद वन मोर वीडियो। दिस इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पार्ट 6. So if you are new on this channel, please subscribe to this YouTube channel and don't forget to press that bell icon so that you never miss an update of my latest videos. And do like, share, comment and subscribe to your YouTube channel, which is Ankush channel. So let's get started. Yes. So in our previous video, which is cell structure and function part 5, we completed a topic that organism, how vary with they each other or on different bases. Now from me, the actual chapter starts from here. This is parts of cell. Okay, so look at the first point. There are mainly three parts of a cell: cell membrane, cytoplasm and nucleus. So here now we are going to look at what a cell contains, what is the structure of cell, and what are the characteristics and what are the functions of different parts of cells. So here we are going to start first of all with cell membrane. Then we will have a look at cytoplasm. It is actually cytoplasm. Cytoplasm. So many people pronounce this very wrongly. So please don't do that. It is cytoplasm. And then third one, nucleus. So we will start with cell membrane. First point of cell membrane is that it is also known as the plasma membrane. Yes, it is important point that cell membrane is known as plasma membrane. You just look at it. This is plasma membrane. Okay. So for important point is it is important point. Cell membrane is known as what? It is known as plasma membrane. Okay. So if we have look at the second point, ये कहता है the cytoplasm and nucleus are bounded within the cell membrane. ये point यहाँ खत्म हो रहा है. Okay. This is point ends here. It is ending point of this point. So the cytoplasm and nucleus are bounded within each other. यानी वो let me take a help with of sheet. Suppose कीजिए ये cell है, okay? तो ये जो outer this is cell, okay? तो ये जो outermost boundary है cell की, this is something which we call as cell membrane. So this is cell membrane, and inside cell membrane generally nucleus is located at the center. This is nucleus. So let me locate it also. This is it is nucleus, and inside nucleus is jelly like substance is found. This is a jelly like substance you can see between cell membrane and cytoplasm nucleus. So this is known as cytoplasm. So it is known as what? Cytoplasm. So this outermost is cell membrane. ये सबसे outermost boundary cell membrane है. इसी के अंदर cytoplasm और nucleus आ रहे हैं ना, तो हमने ये point लिख दिया कि cytoplasm and nucleus are bounded within the cell membrane. यानी cytoplasm और nucleus cell membrane के अंदर होते हैं. तो आई होप आपको अगला पॉइंट समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो गिव शेप टू ए सेल. इसके लिए भी मैं आपको फिर एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा. So we have taken here 4 cell. This is cell number 1, this is cell number 2, this is cell number 3 and this is cell number 4. So we have taken 4 cells of different shapes, okay, and different size also. So first of all look at this cell 1. So where is cell membrane? Can you please tell me? Yes, this is cell membrane. This is cell membrane. Here also this one is cell membrane. In this cell also this is cell membrane, and in this cell also this is cell membrane. Okay, so can you tell me that why this cell is big and this cell is small and this cell is big? Why it is medium and why it is very large? Obviously इनके जो साइज़ का वेरिएशन है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से. सेल मेम्ब्रेन ही सेल को शेप देता है. अगर किसी सेल की कोई सेल छोटा है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या है? छोटी है, तभी तो वो सेल छोटा है. अगर सेल मेम्ब्रेन बड़ी है, इतनी बड़ी है, देखिए अभी देखिए बड़ी सेल मेम्ब्रेन है तो सेल बड़ा है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को शेप देने की हेल्प करती है. तो सेल के हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने 3 चीज़ें पढ़ी. पहली चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरी चीज़ वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को उसके अंदर रखती है, और तीसरी चीज़ वो सेल को शेप देती है. सो अब नाउ कमिंग एट द फोर्थ पॉइंट, इट इज़ द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. ऑब्वियसली नथिंग टू अंडरस्टैंड, only just see this picture. Again this is a cell, it is a thin layer, okay, and also it is semi permeable. You might not know this term, you will study it at 9th standard, okay.
सो दिस इज सेमी परमिएबल. व्हाट इज इट? इट इज सेमी परमिएबल, यानी कि चार तरीके के होते हैं: परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल एंड नॉट परमिएबल एट ऑल. तो सेमी परमिएबल यानी कि कुछ उसके अंदर वो पोरस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें पोर्स होते हैं. ये पॉइंट आगे मैंने लिखा हुआ है, पोर्स हैं काफ़ी ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन के, काफ़ी पोरस है. ठीक है, जैसे सॉइल पोरस होती है, उसके अंदर से पानी जा सकता है ना, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ पोर्स होते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन अपने आप डिसाइड करती है कि किन सब्सटेंस को अंदर जाना है. जैसे कि मिनरल्स हैं तो मिनरल्स को अंदर जाने देती है, और वही डिसाइड करती है कि इन सब्सटेंस को बाहर आना है. तो सेल मेम्ब्रेन एक काफ़ी थिन कोटिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, और ये क्या करती है, शेप देती है सेल को. So we have covered, it is known as plasma membrane, this point also, and this point number 3, and then point number 4. We have covered all those points. I hope you all understood this point. Then fifth point, the cell membrane separates cell from one another and also from the surrounding medium. I think there's nothing to understand in this also concept, that is cell membrane एक cell को दूसरे से differentiate करती है. Again look at it. So let's have a look at the diagram of I told in first video, रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था स्लाइस के अंदर, कॉर्क स्लाइस के अंदर, कि डिफरेंट कंपार्टमेंट वर देयर. यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So different compartments were there when you observe that slice. So also you can see, now you just look at this cell only this cell. सो कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट स्ट्रक्चर. अब इसे मैं हल्का सा जूम करके इसे बाहर लेके आ रहा हूँ माइक्रोस्कोप के. जस्ट इमेजिन दैट. ओके, तो मैंने अभी इस सेल को बाहर ले लिया. एक्चुअली इस शेप का कोई सेल होता नहीं है, बट फिर भी हम इमेजिन कर रहे हैं. तो ये एक सेल हो गया. अब इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या है? सो इसकी सेल मेम्ब्रेन ये है, जो मैं अभी डार्क बोल्ड कर रहा हूँ ना, ये दिस इज सेल मेम्ब्रेन ना. तो यही सेल मेम्ब्रेन, अगर इस यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ये नहीं होती, सेल ऐसा होता. ओके, ये सेल है. ओके, अभी इस दूसरा सेल का ये वाला हिस्सा जो है ये हम काट दें, वी जस्ट रिमूव इट दिस पार्ट. ओके, तो ये सेल ऐसा हो जाता. तो क्या हम इस सेल को इस सेल से डिफ्रेंशिएट कर पाते? ऑब्वियसली नॉट. वी वुड नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट टू सेल्स इफ सेल मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट. जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे ये एक सेल है और एक ये सेल है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन इन दोनों इससे सेपरेट कर रही है ना इस वाले सेल को. अगर ये नहीं होगी तो वो दोनों कुछ ऐसे लगेंगे. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, डिफ्रेंशिएट करती है. सो आई होप आपको वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट पॉइंट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. मैंने आपको अभी बताया कि उसमें पोर्स होते हैं काफ़ी सारे, तो वो सब्सटेंसेज का मूवमेंट अंदर भी अलाउ करता है और बाहर की तरफ भी. This point is also covered. The next point, now important point. In plant cell membrane is further bounded by a thin layer called cell wall. Now आपको मैं इसकी diagram की हेल्प से समझाता हूँ. So look at this diagram. This is a normal cell. So all of you know this is cell membrane outermost boundary. And then inside this is at the center it is nucleus, and inside this a jelly like substance is present which is cytoplasm. But this is a case of normal cell. But if we look at this is a plant cell. Okay, so this is a plant cell. Okay, this is a plant cell. So you can see here this is cytoplasm, this jelly like substance, I have mentioned it. The center nucleus is present, this is nucleus. But if we look at, there are two boundaries instead of one boundary. If you look at this cell, only one boundary is present, and if we look at this cell, two boundaries are present. Now what are they? The innermost, ये जो अंदर वाली है, ये this innermost boundary is called cell membrane. Okay, so this is cell membrane. एंड दिस आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल वॉल. यानी कि प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, और उस एडिशनल लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता होगा, और कुछ लोगों को पता भी हो तो उनका इसका रीज़न नहीं पता होगा कि सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होती है. लोगों को लगता है कि सेल वॉल प्रेजेंट है तो है, पर रीज़न नहीं पता कि सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है. तो मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है इसका. सो आई होप आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा. इन प्लांट cell membrane is further bounded by a thin layer called cell wall. यहाँ पे दो बार सेल आएगा, दो बार सेल है. इन प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ओके,
सेल मेम्ब्रेन इज फर्दर बाउंडेड बाय ए थिन लेयर कॉल्ड सेल वॉल. ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा. दिस एडिशनल लेयर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन. एनिमल्स मूव कर सकते हैं, ह्यूमन्स बीइंग मूव कर सकते हैं, बर्ड्स मूव कर सकती हैं, एंड ऑल द इंसेक्ट्स कैन मूव, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव. तो ये एडिशनल लेयर प्लांट सेल के चारों तरफ इसलिए होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है ये प्लांट सेल के चारों तरफ इसलिए होती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्लियर होगा. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई प्रोटेक्शन इज नीडेड. प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है हमें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, सेकेंड वन. Plant cell need protection against variations in temperatures, high wind, speed, atmospheric pressure, etc. They are exposed to these variation because they cannot move. Now what do I mean by writing this is that कि एनिमल्स मूव कर सकते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली नो देयर वुड बी पागल, कोई भी मेंटली जिसका थोड़ा कम होगा दिमाग वही बारिश में खड़ा होगा. या किसी को ठंड लग रही होगी तो कोई पागल ही होगा जो नंगा बिना क्लोथ्स के घूमेगा. ऑब्वियसली नॉट एनी पीपल वुड बी देयर हु वुड नॉट कवर हिमसेल्फ और हर सेल्फ. सो ह्यूमन्स तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट कुछ बहुत हद तक करते हैं जितना वो कर सकते हैं. अब ऐसा तो नहीं कि एनिमल्स भी क्लॉथ पहन के घूमें और रेन कोट पहन के घूमे. एनिमल्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, मगर प्लांट नहीं कर सकते अपने आप को प्रोटेक्ट बिकॉज दे कैन नॉट मूव. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कैन नॉट मूव. दैट्स वाई दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डिफरेंट टेम्परेचर्स, वेरिएशन, हाई विंड स्पीड. अब हवा बहुत तेज चल रही है, हम लोग अंदर चले जाएंगे, हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट वॉट अबाउट प्लांट्स, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. स्पीड, बहुत तेज़ हवा चल रही है, आपको मैंने बताया अभी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात है, तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स बट प्लांट कैन नॉट प्रोटेक्ट देम सेल्फ. दैट्स वाई सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. तो आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू साइटोप्लाज्म एंड वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग सेल ऑर्गेनल्स. So if you like my video, please hit like on my video and do share these video with friends, and do let me know that what do you feel about my explanation by writing your comments in comment box. तब तक के लिए गुड बाय, घर पर रहिए एंड स्वस्थ रहिए. बाय, थैंक यू.